Hello student. So now we will uh, learn about the hands-on practice on R programming. In previous lectures we have studied about the what is basically the R programming. Now some practical examples is there. So first of all I am explaining you how to download the R. So let me yes. So first you just write R download, and this is the first website, official websites of CRN R projects. So by this you just click and you can download the R latest version of R, whatever the 32 or 64 bit. And one more thing is required, that is R Studio. It is the IDE. So you just type the R Studio and download R Studio from the rstudio.com. So it's a desktop versions for the beginners. It's free. R Studio desktops. Our requirement is only this one. So you can just download this R Studio based on this one. So it is required to install R. So first of all you have to install the R and then R Studio desktop. So after downloading the R Studio, if you open, because I am already downloaded, so now I am open this R Studio. So this is the integrated development environment for R programming. This is R Studio, and this window is a script window where you can write your script. This is a command where simple. So R programming is very simple. It is just like a calculator. Suppose if you write 2 plus 3, 2 plus 3. Okay. So look here. Just a minute. Yes. So if you write 2 plus 3, this will print 5. So whatever the programming you want to write, this is a command based script language, and this is what script, so that your script is saved for the future point of view. This window in right hand side is a global environment where whatever the variable you have used, what are the values, suppose your data sets, all are displayed in this environment variable. Here you can also import the data set also. And this one is a fourth one window where your visualizations plot and packages, suppose what are the packages you have installed, help, viewers, these are the packages I have already installed. So these are the list of the packages. Okay, so now we start with very basic programming. Okay, so first of all, what is print hello student? Okay, so you just write in your script print hello student. This is same as Python we have already learned. Okay, so this is a run button. You just click run and this will print hello students. Here if you want to print the computations expressions like mathematical expression 2 plus 3, जैसे अगर हमें 2 और 3 को जोड़ना है तो हमने लिखा प्रिंट 2 प्लस 3, तो ये 2 प्लस 3 को ऐड भी करेगा और सम, तो यहाँ देखिए ये आउटपुट आ गया हमारा 5. ओके, और अगर आपको लगता है कि नहीं हम किसी वेरिएबल के थ्रू करते हैं तो वेरिएबल ए, यस दिस वन ए, और असाइनमेंट्स के लिए यहाँ पर लेस देन और दिस वन ये डैश, दिस इज द साइन. तो यहाँ पर मैंने 4 असाइन कर दिया, तो ए में 4 आ गया एंड देन बी में सपोज 5 आ गया और सी में मैं चाहता हूं ए प्लस बी. ओके, एंड देन प्रिंट सी. सी को मैं प्रिंट कर रहा था, तो यहां से देखें, सो दिस इज रन, ए इज रन, तो देखिए ए की वैल्यू 4, दिस इज अ ग्लोबल एनवायरमेंट. अगेन क्लिक द रन, तो बी इज इक्वल टू 5 एंड सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो सी में देखिए 9 आ गया है, और जब आप उसको प्रिंट करेंगे तो ये आउटपुट आपका 9 आ जाएगा. तो दिस इज वेरी सिंपल प्रोग्रामिंग. और यहाँ पर हम वेरिएबल्स की क्लास भी देख सकते हैं कि कौन सा डेटा टाइप से. जैसे मैंने v1 नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें 2 वैल्यू असाइन करी है, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्लास उसकी v1 की चेक करना चाहता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको रन करूंगा
print class of v1. v1 is what? 2. So class of v1 is what? v1 not found. Okay, so v is our v1. So if we will run, no, v is not found. Okay, first of all we have to run this one, so that first of all we have to run v1 is assigned to this one, so v1 is variable which have the 2 value, and after that this one, so numeric types is there. और अगर हम यहाँ पर v2 is less than equals to, suppose some name is there like Sunil, okay, string data types, and then we want to print class of v2. So first we have to run this v2 assign character string Sunil and then print. So this is what character types. Even complex data types, अगर हम v3 यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 + 4i, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स है, तो इसको भी हम लिख लें प्रिंट क्लास एंड v3. ओके, तो पहले हम इसको रन करके देख लें दिस वन, तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स हो गया, ठीक है. अब यहाँ पर हमें अगर कोई वेक्टर बनाना है, ठीक है, तो जैसे सपोज हम कोई एप्पल नाम का वेक्टर बनाना चाहते हैं और जिसके अंदर हम कुछ वैल्यूज रखना चाहते हैं, जैसे उसके कौन कौन से कलर है, तो रेड, सपोज ग्रीन, सपोज येलो, ठीक है. तो ये हमारा एक वेरिएबल है एप्पल नाम का, जैसे A1 नाम का एक वेरिएबल है A1, और जिसके अंदर हमारे कलर्स को C इज व्हाट कॉन्केटी, ये यहाँ पर C जो है वो वेक्टर क्रिएट कर देगा, ठीक है. अब हम यहाँ पर प्रिंट ऑफ A1 करके देखें, तो पहले हम इसको रन करें, तो दिस वन एंड देन, तो ये देखिए रेड, ग्रीन और येलो नाम का एक वेक्टर बन गया है. तो इस तरह हम वेक्टर देख सकते हैं और उसकी क्लास भी देख सकते हैं कि उसकी क्लास कौन सी है, क्लास ऑफ A1, ठीक है. क्यों? क्योंकि इसमें कैरेक्टर है, तो ये कैरेक्टर टाइप्स हो गए. ओके, यहाँ पर हम लिस्ट भी बना सकते हैं इफ यू वांट टू. ये हैश इज अ कीवर्ड, जैसे अगर हमें कोई कमेंट्स लिखना है तो क्रिएट लिस्ट. ओके, तो अब हम यहाँ पर लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, तो लिस्ट वन लिस्ट, और इसके अंदर हम C अपना कमांड लिख दें, और यहाँ पर हम जैसे 2, 5, 3, एक एलिमेंट हमारा ये है, दूसरा हमारा 21.3 है, इस तरह हमने बना दें, और फिर हम उसको प्रिंट करके देखें लिस्ट वन को. तो यहाँ पर लिस्ट वन को पहले हम रन करें एंड देन, तो ये देखिए लिस्ट का पहला आइटम एक वेक्टर है, दूसरा आइटम ये, और हम स्ट्रिंग भी दे सकते हैं यहाँ पर. इवन मैट्रिक्स इज ऑल्सो अलाउड हेयर. तो अगर हमें जैसे यहाँ पर देखें हम, यस, तो हेयर इफ यू वांट मैट्रिक्स, तो जैसे अगर हमें क्रिएट मैट्रिक्स अगर हमें बनाना है, एम नाम का एक मैट्रिक्स बनाना है, तो मैट्रिक्स यहाँ पर एक फंक्शन है, देखिए मैट्रिक्स आ गया. तो यहाँ पर C में हम डेटा दे देते हैं, कौन कौन से दे रहे हैं, A, B, B, और यहाँ पर C, ये हमने दे दिया A, B, C, फिर हमने दे दिया D, सपोज E. तो सपोज वी वांट 6 एलिमेंट्स, तो A, B, C, D, E और F. तो ये यहाँ पर हमारा C जो है ये एक डेटा एलिमेंट्स वेक्टर्स हो गया, जो कि हमारा डेटा हो गया. ओके, अब ये पूछेगा हमसे कितने रो का जो मैट्रिक्स बनाना, तो n रो हम कितनी रखना सकते हैं. सपोज हम 2 रोज रखना चाहते हैं और n कॉलम्स में हम 3, तो 2x3 का एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, और हम बाय रो यहाँ पर ट्रू रखना चाहते हैं. रो वाइज कॉलम वाइज आपने पढ़ा ही होगा. तो अब हम इस मैट्रिक्स को प्रिंट करके देखेंगे, पहले हम रन करके देखें. सो इफ यू रन इट, दिस इज अ मैट्रिक्स,
and this is, look here, so A B C D E 2x3 का एक मैट्रिक्स, 2 रो और 3 कॉलम हो गए। यहाँ पर हम डेटा फ्रेम भी बना सकते हैं, क्रिएट अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम मतलब आपको डेटा, जैसे टेबुलर डेटा लेना है, तो जैसे जेंडर में हमें लेना है, और जेंडर में जैसे हम चाहते हैं कि सी में क्या क्या जेंडर हो जाए, जैसे मेल, ओके मेल, और यहाँ पर हो जाए फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 डेटा ले लिए है, जेंडर्स ले लिया है, और फिर हम हाइट भी लेना चाहते हैं एक डेटा, जिसमें कुछ हाइट ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पर 2 पर्सन है, 2 मेल है, तो ये हमने 2 मेल ले लिए हैं और एक फीमेल है। तो मेल की जो हाइट है सपोज 152 रख लेते हैं, और ये 171 पॉइंट कुछ भी 5 रख लेते हैं, एंड थर्ड वन इज 165। तो ये हमारे पास में हाइट हो गई। अब इन तीनों का वेट को भी हम वेक्टर्स बना लेते हैं, जैसे पहले 2 मेल का 81 और 83 कर देते हैं, या 93 हेवी वेट, और फिर थर्ड वुमेन का वेट हम 68 रख देते हैं, ठीक है। और फिर एज, इसको हम नीचे ले लेते हैं, एज हम ले लेते हैं, एज कितनी, मेल की एज हम ले लेते हैं 42, और फीमेल की सपोज 38, फीमेल की 26 ले लेते हैं, मेल की 38। तो ये हमारे पास में 3 डेटा लेना, मतलब जेंडर, फीमेल, यस, जेंडर, हाइट, वेट और एज। तो इसके बेस पे हम डेटा फ्रेम बनाना चाहते हैं। तो जैसे हमारा B1 नाम का हम डेटा फ्रेम बना रहे हैं, तो डेटा डॉट फ्रेम, ठीक है, ये फंक्शन है। तो यहाँ पर हमने फंक्शंस के अंदर दे दिया अपने कॉलम, जेंडर दे दिया, एज, और जेंडर, हाइट, वेट और एज, और इसको हमने बंद कर दिया, ठीक है। तो इसको हम रन करके देखें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यस, नो प्रॉब्लम। अब हम इसको प्रिंट करके देखें B1 को, ओके। तो नो, B1 object not found, why it's not run here, look here, yes, again we check B1 data dot frame, so this one, okay. So first of all we have to run it, error, unexpected error, here some problem is there, because data dot frame, so this is a left bracket, first one for gender, तो ये genders के लिए मेल हो गया हमारा, 2 मेल हो गए हमारे, कॉमा करके लिखा हमने, फिर फीमेल, फिर हाइट में हमने C लिखा है 152, 171.55, ये वेट, एंड देन वेट इज C1 81, दिस वन, और एज में हमने 42, 38 और 26 लिया है एज वाइज, ओके। तो देयर इज नो ब्रैकेट, सो B1 data dot frame, so if I run it, okay, it's okay. So again object B1, error in this one, so we can write B2 is there, yeah, this one, error, unexpected error in B2, this one gender wise is there, जेंडर में जेंडर बराबर है C, that is male, comma, oh, this one is error, so double quotes is missing here, okay, this one, okay, so I got it. So now if I run it B1, so this one B1 and this one, so this is tabular file। तो देखिए ये बिल्कुल डेटा फ्रेम बन गई, जेंडर, हाइट, वेट, एज, और ये डेटा फ्रेम बन गई।
तो यहाँ पर हम dtub पे मिल जाती है। ओके, सो बेसिकली अगर हमें और भी कमांड्स लिखने हैं, जैसे अगर हम अपना नाम किसी स्ट्रिंग में असाइन करना चाहते हैं, जैसे माय अंडरस्कोर नेम, सपोज डॉक्टर सुनील जोशी। ओके, और फिर अब मैं लिखना चाहता हूं तो मुझे ये नाम भी चाहिए और साथ में कुछ मैसेज, लेकिन लाइक माय नेम इज, तो कैट इज अ कमांड वेयर माय नेम इज। ओके, और इसके अंदर में अपनी स्ट्रिंग जो है माय अंडरस्कोर नेम, और साथ में जैसे हम स्लैश एन पढ़ते ना सी में, तो वैसा स्लैश एन भी लिख लेते हैं। ओके, तो अब ये देखिए कैट कमांड माय नेम इज माय अंडरस्कोर नेम, so first of all we have to run this one। तो ये देखिए माय नेम इज डॉक्टर सुनील जोशी, इस तरह हम कर सकते हैं। ओके, तो ये अभी आपको सिंपल बेसिक जो कमांड्स है उनकी आप प्रैक्टिस करके देखिए। ओके, थैंक यू।